Hello friend, after such a long time back, finally I am making video series. Few days back, I conducted a survey in my LinkedIn profile as I qualified the IGBC AP exam. Guys, I want to make video as I cleared the GATE examination. I am pursuing ACM from NICMAR Pune and I cleared the IGBC AP exam. So what kind of video you want from me? Then I get a civil engineering video 18%, IGBC related video, that is the 50%, construction management video 32%. So in my channel, generally I made a video related civil engineering concept, and there is a one video related IGBC related video, and I'm sharing the my study material as well. As many people approaching me through LinkedIn, Facebook, that I make the IGBC video study material, basically IGBC preparation video or IGBC related IGBC video. Okay, so as I see this result, so I am stop making the civil engineering video. I completed this IGBC related video, then I am back to my mainstream, that's the civil engineering video. Okay, so from this video, few 6 to 10 video is about to this IGBC video. So yeah, here is all my material by reading by which I passed the subject. So if you want this material, just follow the rules and regulation which is mentioned at the end of the video. If I open this, you find there is lots of code book. So I start the session with the help of this code book, that is your IGBC green building. Okay, so yeah, so I start the this session from this code book. So it is a basically IGBC green new building rating system, the version 3.0, and yeah, this is the from September 2016. First of all, I want to say one thing. uh, what is our strategy basically what is our strategy? Yeah, first our strategy, we read this code book, and then we solve the MCQ questions. And when we try to solve the MCQ question, then we try to link these codes and provision. Okay, because after because out of 110 question, probably 50 to 60 question you may get common, but as you know 85 is the cutoff marks, so remaining the 25 marks, that is very conceptual. Okay, so we start this code. So if you are preparing for the IGBC AP exam, then my humble request, don't skip this video, because it is only for you and it is just for your benefit purpose. CII Sorabji Godrej Green Business Center. So basically there is a wait so basically there is a 1110 questions. Okay, and 1110 जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 4 to 5 सेक्शन रहेंगे. वो 4 to 5 सेक्शन क्या है, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे. फर्स्ट इज योर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, section number 1. Section number 2, your water conservation. Section number 3 is energy efficiency. Section number 4 is your building material and resource. And then 5 is indoor environment quality, and 6 is innovation and development. So the thing is that this 110 जो क्वेश्चन आएगा, तो इसके अंदर हर जो सेक्शन है, जैसे कि आपका हो गया सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, नेक्स्ट हो गया आपका एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन, बिल्डिंग मटेरियल रिसोर्स, तो हर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम में. ऐसा आप मत सोचो इससे कम आएगा उससे ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा. ठीक है.
सो फॉर सम नोइंग पर्पस मैंने कुछ मार्क किया था, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इज ग्रोइंग एंड एवरेज 9.5% कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज 5%। ओके, तो ये इनिशिएट कौन किया था? CII सबर्जी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। कहाँ पे? तो इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, दैट इज कॉल्ड IGBC। ओके, इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट काउंसिल। कब हुआ था? सिंस 2001। अभी तक मतलब ये 2014 का, तब तक 3.84 बिलियन स्क्वायर फीट का ग्रीन बिल्डिंग हो चुका है कंट्री में हो चुका है। ये अपने एक्नॉलेजमेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सम टाइम पीपल आस्क यू व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन न्यू बिल्डिंग। क्या लिखा है? ग्रीन न्यू बिल्डिंग कैन हैव ट्रिमेंडस बेनिफिट। तो क्या बेनिफिट? फर्स्ट बेनिफिट इज रिडक्शन इन वाटर एंड एनर्जी कंजप्शन। तो मान लो अगर वाटर कंजम्पशन रिड्यूस हुआ तो मतलब वी कैन सेव द वाटर, बिकॉज नाउ द टाइम इज द ग्लोबल वार्मिंग। और हर साल 1-2 डिग्री आधा डिग्री करके जो आपका वो होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो पानी पिघल, जो आइस होता है वो पिघल रहा है और पानी वैसा आ रहा है। तो अगर हम वाटर रिड्यूस कर सकते हैं तो इट इज़ आवर बेनिफिट। ओके, जैसे कि लिखा है एनर्जी सेविंग कुड बी रेंज ऑफ 20-30%, एमसी को आ सकता है, एंड वाटर सेविंग 30-50%। एज वेल एज ये जो एयर क्वालिटी है वो भी अच्छा हो रहा है, प्यूरीफाई हो रहा है। देन ये जो वाटर कंजप्शन हम लोग कर रहा हूँ, इसके अंदर एक 3R टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। क्या है वो 3R? 3R इज़ बेसिकली रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। तो ये 3R कह सकता है। यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसे भी आ सकता है। तो आपको सही ऑप्शन यू हैव टू चूज। देन व्हाट? एनर्जी एफिशिएंसी 20-30%, जो मैंने पहले कह ही चुका हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम IGBC इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को जैसे कि एक मीथ है IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग, मतलब वो ओनली फॉर रियल एस्टेट मार्केट। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। देखो, ऑफिस, IT पार्क, बैंक, शॉपिंग मॉल, होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, स्टेडियम, convention center, everywhere you can use it, eventually factory और integrated township। तो बेसिकली IGBC जो ग्रीन बिल्डिंग हुआ है उसके दो पार्ट्स है, वन इज ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, वन इज टेनेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। तो ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग क्या होता है, टेनेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग क्या होता है? Now, owner occupied building is those kind of building जहाँ पे 51% और more than built up area is occupied by owner। तो मान लो ये एक आपका बिल्डिंग है और इसके अंदर आपका एक रेंट जो जिसको दिया है वो रहता है और आप रहता है। तो इसका अगर 51% आपका प्रॉपर्टी है देन दिस इज ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। अगर जो आपका रेंट जिसको दिया है अगर उसका परसेंटेज 51 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा टेनेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन, IGBC ग्रीन न्यू बिल्डिंग जो रेटिंग सिस्टम है वहाँ पे जो बिल्डिंग को हम क्लासीफाई किया है उसका कितना तरीका होता है? दो तरीका होता है। एक होता है आपका वही ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग जहाँ पे 51% ओनर रहेंगे, नहीं तो टेनेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग जहाँ पे 51% टेनेंट रहेंगे। ओके, इसके बाद आ रहा है ओवरव्यू प्रोसेस। ओवरव्यू प्रोसेस के मतलब वो जो मैंने लिखा था कहाँ कहाँ से एग्जाम कब पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिखा है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, साइट सिलेक्शन, प्लानिंग, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद आपका आ गया बिल्डिंग मटेरियल, इंडोर। तो ये टोटल 6 हो गया। अब हम देख सकते हैं इसका जो सर्टिफिकेशन लेवल है वो क्या चीज़ होता है। देखो ना, सर्टिफिकेशन लेवल जो होता है वो होता है दिस 4 आर्ट IGBC सर्टिफाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिल्वर, आउटस्टैंडिंग, गोल्ड, नेशनल, प्लैटिनम, लीडरशिप। इसके बाद रजिस्ट्रेशन। तो मान लो आप एक प्रॉपर्टी बना लिया तो प्रॉपर्टी बना लिया तो वो ऐसे तो IGBC रजिस्टर नहीं होगा।
तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन रजिस्टर इन देयर प्रोजेक्ट अंडर IGBC ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम सर्टिफिकेशन और एडवाइस टू फर्स्ट रजिस्टर ऑन IGBC वेबसाइट। तो देखो कहाँ पे रजिस्टर करना है ना, IGBC.in में रजिस्टर करना है। समटाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अंडर IGBC ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, तो पहले बिल्डिंग को डिफाइन किया, उसके बाद कैसे रजिस्टर करें वो डिफाइन हो रहा है। द वेबसाइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन रजिस्ट्रेशन फ्री फॉर IGBC मेंबर कंपनी एज वेल एज नॉन मेंबर। जब आप एग्जाम क्रैक करोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा, आप मेंबर भी बन सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विद IGBC, मतलब आप ये प्रॉपर्टी बना लिया, उसके बाद IGBC में रजिस्टर किया, तब पहली बार IGBC और ये घर के अंदर पहली बार कनेक्ट हो। हाँ, मेरे पास एक प्रपोजल आया है, उसको मुझे चेक करना है, अगर सही है तो मैं उसको सर्टिफाइड कर दूँ, नहीं तो कुछ फ्लॉज रहेंगे, वो सही करने के बाद मैं सर्टिफिकेट दे दूँगा। तो क्या वो चीज़ है वो हम जानने वाले हैं। सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन तो लगेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, to achieve the IGBC green new building system the project must satisfy the all mandatory requirement। तो requirement क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट एंटिटी, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या स्कोप है, किसका कितने का है, प्लेस क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है। उसके बाद प्रोजेक्ट ब्रीफ स्टेटिंग प्रोजेक्ट टाइप, मतलब कितना फ्लोर रहेंगे, स्पेस कितना है, फार कितना है, सब कुछ लिखना। उसके बाद जनरल ड्राइंग, मास्टर साइट प्लान, पार्किंग प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेटर स्टेशन, देन फोटोग्राफ्स और रेंडर इमेज। रेंडर इमेज कहाँ से मिलेगा, फोटोग्राफ तो नहीं मिलेंगे। हाँ, फोटो जो लैंड के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसके तो फोटोग्राफ दे सकते हैं, बट जो रेंडर इमेज कहाँ से आता है, ये आता है जैसे कि आपका बीम से आता है। बीम एक बेसिक हो गया, तो बीम से जनरली आ सकता है इसका रेंडरिंग इमेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि ड्राइंग का कैलकुलेशन का मतलब एस्टिमेशन आएगा। उसका डिक्लेरेशन, मतलब ये आप बिल्डिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर कहाँ से क्या परमिट लिया तो उसका डिक्लेरेशन कर देना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये प्लेस के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो रहे हो तो आपका क्लाइंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो ये आपको लगेगा ही लगेगा। इसके बाद अप्लाई करने के लिए 2 स्टेज है, 1 स्टेज इज प्रिलिमिनरी सबमिटल, अनदर फेज इज फाइनल सबमिटल, मतलब एक फाइनल और एक प्री फाइनल। तो प्रिलिमिनरी में क्या होता है ना, प्रिलिमिनरी फेज में सबमिशन ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, which shall include mandatory requirement and the minimum number of credit. After the preliminary submission, review is done by third party accessor। जो प्रिलिमिनरी होता है वो होता है थर्ड पार्टी की मतलब वो लोग करता है। अगर सही हो गया देन यू कैन गो फॉर फाइनल। ये रिव्यू का कितना टाइम लगता है ना, ये रिव्यू का मतलब ये जो प्रिलिमिनरी फेज का रिव्यू चल रहा है ये इसका टाइम लगता है 30 डेज। ओके, नेक्स्ट फेज जो आता है, देखो द नेक्स्ट फेज इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रिव्यू क्वेरी एंड फाइनल सबमिटल। देखो अगर कुछ रिव्यू क्वेरी है तो ये 30 डेज के अंदर वो देना है, अगर नहीं है तो फाइनल सबमिट करना है। दिस ऑल्सो टेक 30 डेज। तो टोटल मिनिमम कितना डे हो गया, 30 प्लस 30 दैट इज 60 डेज। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट, देन देयर थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है। तो जो क्रेडिट आपने यूज़ किया है आपका बिल्डिंग के अंदर, अगर वो 40 to 49 के अंदर आ रहा है देन दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस सर्टिफाइड। इफ 50 to 59 दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग, 60 to 74 नेशनल एक्सलेंस गोल्ड, 75 to 100 ग्लोबल। तो ये 4 टाइप का सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो मतलब तो अभी क्या पड़ा, पहले बिल्डिंग का टाइप हो गया, ये 2 टाइप हो गया, एक टेनेंट एक ऑक्यूपायर, बोथ फॉर 51%। ठीक है, इसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का 2 प्रोसेस है, प्रीली एंड फाइनल। प्रीली के टाइम कितना लगेगा, प्रीली के टाइम लगेगा 30 डेज, फाइनल पे कितना टाइम लगेगा 30 डेज, टोटल कितना हो गया 60 डेज। ठीक है, और इसके अंदर और क्या हम देखें, इसका जो सर्टिफिकेशन लेवल है दैट इज द 4 टाइप्स सर्टिफिकेशन लेवल है।
जिसका वैल्यू होता है, एक तो होता है 40 to 49, एक होता है आपका 50 to 59, एक होता है 60 to 74, एक होता है 75 to 100। ठीक है, तो ये हो गया इस। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे डाउट क्लियर के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, फॉर योर बेनिफिट। इसके बाद वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस देखो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अभी वो एक वेन डायग्राम का अंदर दिया गया है। पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट के लिए प्रोजेक्ट टीम आएंगे। उसके बाद थर्ड पार्टी से रिव्यू होगा। थर्ड पार्टी रिव्यू होगा, कितने में 30 डे लगेगा। अगर सही है तो सबमिशन ऑफ द फाइनल डॉक्यूमेंट बाय प्रोजेक्ट टीम। देन उसके बाद जब फाइनल होगा तब IGBC से बंदे आएंगे, और बंदे आएंगे तो फुल रिव्यू, फाइनल रिव्यू करेंगे और अवार्ड भी देंगे। तो ये कितने टाइम लगेगा, 30 डेज लगेगा। अगर मान लो कुछ लोचा हो गया तब क्या होगा, फिर 30 टाइम देगा फॉर जो फ्लॉज है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। दैट इज़ योर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। प्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी सेम होता है, और जो डायग्राम वो भी सेम होता है। तो मैं इस यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद प्री सर्टिफिकेशन वैलिड फॉर 3 years from date of award, after which project are required to apply full certification, submit construction progress report once in 6 months। मान लो 3 साल ले लिया टाइम, बट विद इन 6 मंथ आपको थोड़ा देना पड़ेगा, एंड एक्सटेंशन सर्टिफिकेट भी हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, क्रेडिट इंटरप्रिटेशन। अच्छा, फीस जो है दैट इज द मेन थिंग। फीस आपको IGBC साइट पे ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आ रहा है टोटल कंटेंट, जैसे कि मतलब ये चेकलिस्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, और इनोवेशन डेवलपमेंट हो गया। तो ये पूरा चीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब हर वीडियो में एक एक चैप्टर हम करेंगे। जैसे कि आपका सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में एक वीडियो आएंगे, साइट सिलेक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो आएंगे। मतलब हर चीज़ मैंने डिटेल में कवर करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो आएंगे। तो बस ये वीडियो अंदर बस थोड़ा मैं नॉलेज दे दिया, कैसे कैसे सब कुछ होता है, कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे आपको प्री सबमिट करना है। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा आउटपुट दे दिया। एंड वन मोर थिंग, अगर अगर आपको अगर आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर 1, देन आपको एक छोटा काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का लिंक आप देख पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। तो आप जहाँ पे शेयर किया और चैनल में सब्सक्राइब किया, उसका स्क्रीनशॉट मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में अब मुझे पहले तो कनेक्ट करना है। मुझे कनेक्ट करने के बाद आप मैसेज करना है और वो 2 स्क्रीनशॉट में डालना है। उसके बाद मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। दैट इज़ द वेरी सिंपल थिंग, because in this world nothing is free, so I am charging very small thing for this. I hope that is very affordable. Okay, so with this thing I am ending this video. Till then, bye bye, stay safe, and wish you all the best for your IGBC AP exam.